A wonderful good morning to all my lovely students of 11th grade. I hope you all must be fit and fine at your places, dear students. And I definitely hope that you all must be completing your written work in your grammar as well as in your literature notebooks. Okay. Now, students, of course, the time is of course of pandemic, and we all have to work very hard, okay, to fight this pandemic together. Okay, and of course, students, I would like to re-inform you students about your registrations. Okay, if you have not yet registered yourself for the board registrations, get it done today or latest by tomorrow. Okay, because again and again the school authority, the teachers are informing you to do so. Okay, so don't be lousy. Okay, don't think oh it will be done later, as it will be treated on the strictest grounds. Okay, so be updated, do your work, do your studies, and of course follow the guidelines also given by the management and the school authority from time to time. Okay, students? Now, I definitely hope you all must be sitting with your textbooks open. Yes, students. Now, what happened on 2nd of January? You remember? What happened on 2nd January in our story? Of course, on 2nd January, okay, the wave walker. On that day, we have studied about wave walker. What was wave walker? Of course, it was a very beautifully crafted ship of our narrator. Of course, right? It is a beautifully crafted ship. Okay, but students, okay, the weather, okay, has changed now. Okay, and on that day we have studied that a big cloud of wave has splashed onto the sea. Okay, and first the sea became horizontal हो गई थी हमारी वेव वॉकर कंप्लीटली. ठीक है, एंड उसके बाद अनदर वेव जब आई तो डेफिनेटली द वेव वॉकर वॉज पुट बैक इनटू द स्ट्रेट पोजीशन. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स नाउ स्टूडेंट्स द वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स जो नरेटर थे ही क्रश्ड ऑन टू द व्हील. क्रश्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? अचानक से ऊपर से जैसे ही ये क्लाउड का स्प्लैश हुआ था, his head was completely banged into this main wheel. Okay, and when the wave walker, okay, it became horizontal. wave walker students जब horizontal हो गई थी तो क्या हुआ? of course ये पूरी तरह से जितनी भी चीज़ें थी arrange हुई थी, crockery, dresses, food materials, equipments, everything started floating into the water, because now wave walker was completely filled with the water. Okay, and आप जानते हैं students that अगर किसी ship में पानी रुकना शुरू हो जाए या पानी आना शुरू हो जाए तो what could be the result? Okay, definitely it was extremely dangerous. Okay, and of course he means narrator. Now he was floating. Floating समझते हैं आप students? What is floating? तैरना. ठीक है ना, हमारे जो नरेटर थे वो बेचारे फ्लोट कर रहे थे पानी में. ही वॉज फ्लोटिंग. यहाँ शिप पे पूरा पानी भर चुका था. ओके, बिकॉज ऑफ दिस वेव. ठीक है, ये समुद्र की लहर थी जो एज अ क्लाउड बन के रुकी और फिर स्प्लैश की तरह गिरी. ओके स्टूडेंट्स, सो द वाटर वॉज कम्प्लीटली हेयर एंड द नरेटर वॉज ऑल्सो फ्लोटिंग ऑन द डेक. ठीक है, डेक कौन सा पोर्शन होता है? शिप का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जो वुडन पोर्शन होता है. देखा होगा आपने, शिप देखी है ना. ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज ऑलवेज वुडन ऑफ अ शिप.
राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या हुआ था स्टूडेंट्स, द मोमेंट दिस ब्लैक क्लाउड केम डाउन, कैसे आया था ये? इट केम डाउन विद एन एक्सप्लोजन, ठीक है, एकदम से वहाँ पे बैंग हुआ था, जिस वजह से यहाँ का जो डेक था इट वॉज डैमेज्ड, ठीक है, इट वॉज डैमेज्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर का जो डेक वाला पोर्शन था वो काफ़ी जगह से डैमेज हो गया स्टूडेंट्स। तो उससे क्या हुआ, कैन यू इमेजिन? यस, उससे ये हुआ कि जो पानी था वो शिप के अंदर जाना शुरू हो चुका था। तो वो क्या हो सकता था अगर शिप में अंदर पानी भरने लगेगा तो? इट विल सिंक। सिंक मतलब क्या होता है? सिंक मीन्स डूबना। हमारी ये जो वेव वॉकर थी ये डूब जाएगी, क्योंकि पानी भरना इसमें अंदर स्टार्ट हो चुका था स्टूडेंट्स। गॉट द पॉइंट? ओके, इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स फाइनली, ओके, clothes, crockery, charts, tins, toys lay scattered in deep water. Scattered क्या होता है? What are scattered? टूटे हुए और बिखरे हुए, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें थी which were there on the deck, they were all scattered and now they were all floating on this water. And where was the water? Of course the water now was in the wave walker. Is that clear students? And हमारे narrator की क्या situation थी? The situation of the narrator, let us see what was that. Okay, this was the condition, of course, of our narrator. His mouth was filled with blood and broken teeth. Okay, and of course, many severe injuries were on his body. Right, students? You understand now what was the condition? क्योंकि जैसे ही वो स्प्लैश हुआ था, हमारे नरेटर जो मेन व्हील है उससे टकराए थे। ओके स्टूडेंट्स, और अब यहाँ ऊपर पानी में बच्चों की जो रैग डॉल्स है, रैग डॉल्स आपको पता है, two little children are also traveling with them, है ना। हमारे नरेटर के साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कौन कौन हैं? जोनाथन, यस, एंड द अदर वन इज स्यू, दैट इज सुजैन, ठीक है। उनका पेट नेम भी है स्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑफ कोर्स जैसे ही इसमें पानी भरना शुरू हुआ, ऑफ कोर्स ही क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, है ना। हमारे नरेटर को बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो बच्चों से मिलने नीचे वाले कैबिन में गए स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ऊपर कौन आ चुके थे? ऊपर यहाँ व्हील पे कौन आए थे? उनकी वाइफ मेरी जो थी वो व्हील पे आ गई थी, एंड जो नरेटर थे वो बच्चों के पास नीचे उनके कैबिन में
गए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो स्यू थी, ठीक है, स्यू हैड स्यू की जो आई थी, आई क्या होती है, आँख, आँख के ऊपर बहुत मोटा एक बम्प था। बम्प क्या होता है, इस तरह से आप देखते हो ना, सूज जाता है, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, हमें चोट लगती है कहीं ज़ोर से, है ना, हम टकराते हैं किसी चीज़ से तो स्किन हमारा ऐसा होता है, तो थोड़ा सा स्वॉलन हो जाता है। तो हमारी बेचारी जो स्यू थी, उनकी आइज़ के ऊपर ओके एक बहुत बड़ा बम्प हो चुका था, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड ऑफ कोर्स लेकिन नरेटर के पास उन बम्प्ड हेड्स के लिए टाइम नहीं था, बिकॉज द कंडीशन वॉज सो क्रिटिकल। क्या करना था पहले? सबसे पहले ऑफ कोर्स जो पानी भरता जा रहा था उसे रोकना था। डेक था वो डैमेज हो चुका था, ठीक है, पानी भर चुका था वेव वॉकर में, तो वो नीचे बच्चों से मिलने तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा देर उनके पास नहीं रुक पाते। ओके, गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर इन द चैप्टर। ओके, okay, now students, of course, as the narrator had no time for bumped heads, okay, he quickly bought the big pump from below. Okay, big pump लेके आते हैं वो अपने नीचे वाले स्टोर हाउस से, ठीक है, शिप का जो स्टोर हाउस था वहाँ से बिग पंप लेके आते हैं। एंड ऑफ कोर्स टिल 3rd Jan till the 3rd Jan, of course, they were able to maintain the water level. कैसे maintain रखा? By pumping out the water. Okay, पानी को continuously पंप आउट करते करते उन्होंने कितने जाने हैं वाटर पंप आउट करने के लिए? थिंक अगेन, वन नहीं है, नरेटर नहीं पंप आउट कर रहे अकेले, यस, उनके 2 असिस्टेंट्स भी हैं, राइट, ऑफ कोर्स 2 असिस्टेंट्स आर ऑल्सो देयर विद हिम। ओके, एंड अब ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स वाटर लेवल क्वाइट कंट्रोल था टिल 3rd January, ठीक है। एंड वो जो तीनों पर्सन थे, नरेटर एंड 2 क्रू मेंबर, वो क्या करते थे? 2-2 घंटे का रेस्ट ले रहे थे रोटेशन में, है ना। और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था हमारे वेव वॉकर में, तो कंटिन्यूसली पानी को पंप आउट करना था। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स हाउ डिफ़िकल्ट कंडीशन इट वॉज। Okay, and the whole family was completely in the grip of fear, and the children were also, on the other hand, were suffering. Okay, they were physically injured also, है ना, right students? And of course finally, okay, the water line was still increasing. रीज़न क्या था? एक बहुत बड़ा लीकेज था स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा लीकेज था। कहाँ था? डेक पे। अभी बताया था ना हमने आपको, ऊपर का पोर्शन जो था डैमेज हो चुका था। अब जब तक उस लीकेज का मतलब क्या है? पानी का बहना।
तो वो लीकेज जब तक कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पानी नीचे फिल होता जा रहा था वेव वॉकर में, उसका मतलब क्या था, वेव वॉकर विल डेफिनेटली ड्राउन, डेफिनेटली वो ड्राउन हो जाएगी अगर पानी का जो ये लीकेज है इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स फाइनली, ठीक है, दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स अब सबसे पहले वो सर्च शुरू करते हैं किसी आइलैंड के लिए, है ना, क्योंकि इतना बड़ा सी था, इतना बड़ा समुद्र था, आइलैंड अगर कहीं भी मिल जाएगा तो इनकी जान बच जाएगी। ठीक है, लेकिन उस वाटर लीकेज को रोकने के लिए वो बड़ी बड़ी फ्रेम्स को भी वहाँ पे फिक्स करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वेव वॉकर को, ठीक है, वेव वॉकर को बचाने के लिए। ठीक है, एंड देन द नरेटर मेड द कैलकुलेशंस, अपनी कैलकुलेशंस करता है, अपने चार्ट्स को दोबारा देखता है, एंड तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। कैसा आइलैंड है, जहाँ पे वो थे वहाँ पे स्टूडेंट्स, ओके, आई विल टेल यू। Now this much is clear to everyone, I definitely hope. Okay, ठीक है, एक पिन प्रिक्ड आइलैंड। ठीक है, बात समझ आई स्टूडेंट्स। पिन प्रिक्ड क्या होता है, सिर्फ सुई की नोक जितना छोटा सा एक आइलैंड था उस पूरी वास्ट सी में। ठीक है, एंड नरेटर को ये लगता है कि अगर हम इसे पालें, अगर ये हमें मिल जाए, है ना, तो वी कैन सेव आवर लाइफ। रीज़न क्या था, हमारा जो वेव वॉकर है वो दोबारा अगर समुद्र में तूफ़ान आ गया तो इस बार हमारा वेव वॉकर उन तूफ़ानी हवाओं को नहीं सह पाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी कोशिश शुरू होती है इस पिन प्रिक्ड आइलैंड को ढूंढने के लिए, और इसका नाम क्या था, इट इज़ राइट देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, LA Amsterdam, Amsterdam it is. Okay, this is Amsterdam. Okay, LA Amsterdam was the name of this pinpricked island. ठीक है, now इस island को ढूंढना बहुत मुश्किल था students. However, okay, reason ये था that of course January 4th तक दोबारा कुछ waves आकर इंजन को out of action कर चुकी थी। ओके, एंड ऑफ कोर्स नाउ उनकी जो स्पीड थी, ठीक है, इट वॉज, अभी इंजन पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अगर व्हील को राइट घुमाओगे तो वो एकदम टर्न हो जाएगा, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। और समुद्र में सेलिंग किसके अकॉर्डिंग चलती है स्टूडेंट्स, विंड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तो विंड्स थी नहीं, यहाँ तो क्या थी बताइए, gales. हाँ जी students, the gales were of course making the journey from difficult to worse, from bad to worse. They were making their journey. Okay, now students, they ate their first meal in almost 2 days. ठीक है, 4th of January की evening तक, ठीक है, उन्होंने अपना पहला खाना खाया स्टूडेंट्स। 2 दिन हो गए थे किसी ने खाना नहीं खाया था। ओके, और खाने में क्या मिला होगा उन्हें, जस्ट इमेजिन, पुराने कुछ बिस्किट्स, कुछ स्नैक्स जो बचा होगा, है ना, थोड़ा बहुत वही खा के वो सरवाइव कर रहे थे स्टूडेंट्स। एंड ऑफ कोर्स now till January 5th the situation was desperate. Okay, अब
देखिए स्टूडेंट्स, नाउ द टर्न कम्स 5th ऑफ जनवरी को हमारे नरेटर हमारे दोनों बच्चों के पास जाते हैं. ही वेंट टू हिज किड्स, अपने बच्चों के पास जाते हैं. एंड यू नो स्टूडेंट्स, हमारा जो जोनाथन है वो क्या बोलता है? व्हाट जोनाथन सेड. ओके, जोनाथन का क्वेश्चन था, yes, the question is, Daddy, are we going to die? Daddy, क्या हम मरने वाले हैं? Oh, such a question, okay, which simply shook the narrator. ठीक है, ये क्वेश्चन उस छोटे से बच्चे जोनाथन ने पूछा जब अपने फादर से, अपने नरेटर फादर से, तो नरेटर पूरी तरह से हिल गए. जोनाथन ने लेकिन आंसर का इंतज़ार नहीं किया. उसने क्या कहा आगे स्टूडेंट्स? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ओके, बात समझ आई स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ओके, जोनाथन ने आगे अपने फादर को ये बात कही कि फादर, अगर हम सब एक साथ हैं तो मुझे डरने से डर नहीं लगता. ओके, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, नरेटर वहाँ पर उसी वक्त, ठीक है, उन बच्चों को दिलासा देकर, कंसोल कर कर वहाँ से चले जाते हैं. एंड इवनिंग में, ओके, इन ड्यूरिंग इवनिंग टाइम व्हेन ही वाज सिटिंग विद हिज वाइफ टुगेदर, ओके, दे वर थिंकिंग, क्या सोच रहे थे वो दोनों हस्बैंड वाइफ? देयर एंड वाज नियर. हाँ जी स्टूडेंट्स, कि उनका जो अंत है, यानी कि उनकी जो मृत्यु है, वो अब बहुत ही नज़दीक है. राइट, उनका जो एंड है, जो उनकी मृत्यु है, अब काफ़ी नज़दीक है. क्योंकि गेल्स तो बंद नहीं हो रहे थे, जो सी गेल्स हैं वो बंद नहीं हो रहे थे, और दूसरी तरफ वेव वॉकर की पोजीशन और भी डल हो चुकी थी. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स राइट स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, ठीक है, 6 जनवरी को नरेटर ने फिर से अपनी कैलकुलेशंस चेक करी एंड दोबारा से अपने कंपास, अपने रडार को यूज़ किया. एंड टुडे ही वाज डिटरमाइंड टू फाइंड दिस एले एम्स्टरडैम. ठीक है, रीज़न क्या था? रीज़न था ये थॉट, ये जो दो विचार थे इन बच्चों के, ये था नरेटर को मोटिवेट करने का ज़रिया. ठीक है, हताश नहीं हुए नरेटर. बच्चों ने भी क्या बात कही? बच्चों ने क्या ये कहा कि हम मर जाएंगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं कहा बच्चों ने. दे वर कंप्लीटली, दे सेड that they faced this situation with courage. Right? What they said, we are not afraid to die if we can all be together. Okay students, so on 6th January in the morning, again our narrator started his calculations and rechecked his calculations, and he was determined to find the island of LA Amsterdam. You got my point? Is it right students? Everything is clear now? I hope you can understand this.
Okay, and after checking all the calculations, after checking everything, now of course our narrator was completely assured, okay, and today he was confident enough that yes, he will be finding the island for his children's sake. अपने बच्चों के लिए वो उस आइलैंड को ढूंढ कर ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, whatever the conditions are. Okay, he will work to find that pin-pricked little island in that vast sea. Okay, in that vast and endless sea. Is that clear, my lovely students? आ रही है स्टोरी समझ में? यहाँ पे देखिए व्यूज, जो करेज है वो किस में है? करेज इन बच्चों में है, ठीक है। वो कहते हैं हमें मरने से डर नहीं लगता इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, you got my point, lovely students? Okay, is that clear? And I definitely hope that you all must be enjoying this story, this saga of courage. Okay, this saga of facing any difficulty with sheer courage and optimism. Okay, students, is that clear? I definitely hope, students, that of course you will also face each and every situation in your life with courage and bravery. Okay, students, right? That is all from my side today, students. So we will be continuing the chapter in tomorrow's class. Okay, is that clear? So that is all from my side. Have a wonderful day ahead. God bless you all, my lovely students.